Welcome to this math session, students. In previous math session, we started our exercise 2.1. 2.1 एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे. 2.1 इन क्लास एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस एंड होमवर्क के बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था आप एक बार घर से ट्राई करना है एंड उसमें आपको जो भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. राइट, सो इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल दिस डाउट्स. लेट अस स्टार्ट. इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड वन, पहले वो वाला हम डिस्कस करते हैं. Nikila, you are unmuted, Nikila. I think Nikila is not knowing. Now, so question number 5 in class exercise में इसमें सबको डाउट है तो पहले ये वाला देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में 1 by 1. Now, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट t plus 7. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, उसके रीजन लिखने हैं और डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल आल्सो वी हैव टू मेंशन. राइट, सो we'll mention them one by one. Question number 5, first question, cube root t plus 7. चलो, क्या ये पॉलिनोमियल है? Who will tell me this? बोलो रोहित, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. पक्का? श्योर? What is the condition for polynomial? रोहित बोलो. समर्थ, क्या ये पॉलिनोमियल है? No, sir, it is not a polynomial. Wait. Samarth, can you speak little bit louder? Sir, it is not a polynomial. Yes, it is not polynomial. And what is the reason? Sir, cube root t can be written as t to the power 1 by 3, and 1 by 3 is not a whole number. Yes, because it is t to the power 1 by 3 plus 7. And polynomial में आपकी पावर क्या होनी चाहिए, right? We have seen the difference between algebraic expression and polynomial. That in algebraic expression your power can be negative or fraction, but in polynomial your power should be non-negative and it should be integer only, not fraction. Is this clear, everyone? Right? You can tell me yes if you agree. Sir. So it is not polynomial since power is 1 by 3. Okay, चलो. Second question, बोलो सांकेतिक. y to the power 100 plus 101, क्या ये polynomial है? And what will be the or what is the degree of polynomial? Sir, 100. 100. And what is the reason it is polynomial? Because power is, or particularly power of variable is non-negative integer. Yes or no? Yes, sir. Now, x plus square root 69. Okay. Pratika, what can you tell me about third one? Sir, it is a polynomial. Yes. What is the reason? Sir, because it's not a negative and not in the form of fraction. Yes. So it is a non-negative integer power. See, here 69 is having square root power, right? But we don't have to focus on constant. We have to focus on variable only. आपको वेरिएबल की पावर पे ही फोकस करना है. यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, तो x की पावर तो 1 ही होगी. हाँ या ना? Please give me some response, right? So here power of variable. आवाज अच्छे से आ रही है ना? Right? Since I am using mic in your class very first, सबसे पहले आपके क्लास में यूज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ. नहीं तो माइक को थोड़ा ऊपर नीचे मैं करूंगा. राइट, माइक का पोजिशनिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज वॉइस क्लियर? कि थोड़ा डाउन करूं? हाँ, ओके. विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो अब अगर ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है देन इट इज फॉर. अब ये कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको सारी चीजें लिख रहा हूँ, फिर बाकी सब में आप लिख सकते हो. हाँ या ना? प्रतीक का डिग्री क्या हो जाएगी? 1. ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मुझे कौन बताएगा? t to the power 5 plus 5 by t. तेजस, फोर्थ क्वेश्चन, t to the power 5 plus 5 by t. Sir, it is not a polynomial. Not a polynomial. What is the reason? What should be the reason for this?
Sir, it's in fraction. यस, नहीं फ्रैक्शन नहीं है, t टू द पावर 5 प्लस 5/t, उसमें t की पावर क्या है, t टू द पावर 5 में 5 है, बट व्हाट अबाउट 5/t, यस -1, राइट। तो यहाँ पे t टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू t टू द पावर -1, so it is having negative power. Power of variable is negative. आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है, राइट स्टूडेंट्स। so it is not an polynomial, not a polynomial. आप अपने तरीके से लिख सकते हो ना वर्ड्स में स्टूडेंट्स, जो पहले 2-3 क्वेश्चन में मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, करेक्ट राघवी, राइट। चलो बोलो राघवी, नेक्स्ट 5th में क्या होगा, x² प्लस y टू द पावर 5 क्या पॉलिनोमियल है? No, sir. हाँ, यू आर टेलिंग यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, very good, Raghavi. And what will be degree of this polynomial? 5. Very good. Chalo, Rohan, can you tell me about next question? Question number 6, which is यहाँ अच्छे से पढ़ो क्या दिया गया है मॉड्यूल में, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। स्क्वायर रूट x प्लस x² है कि क्यूब रूट x है? Sir, it is square root only. स्क्वायर रूट x. Okay. Sir, it's not a polynomial because there's square root. Yes. So it is your square root x plus x², and it is not polynomial because of square root. क्योंकि square root मतलब पावर हो जाएगी 1/2. Yes or no? Because it will be your x to the power half plus x². So it is not an polynomial, not a polynomial. Reason आप लिख सकते हो, right? You can write the reason. Easy everyone, right? Easy peasy lemon squeezy, एकदम आसान हो जाएगा. Okay. चलो नेक्स्ट, इसके बाद नाउ वी आर हैविंग x प्लस 2y प्लस 3z. बोलो निष्का, x प्लस 2y प्लस 3z, इज इट पॉलिनोमियल? इज इट पॉलिनोमियल निष्का? यस. एंड व्हाट शुड बी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 1. वेरी गुड. नाउ इंचरा, कैन यू टेल मी अबाउट 8 क्वेश्चन? इंचरा, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ यस रोहन, ये जो आपका 7th वन है, 8th वन है, 5th वन, वो एक वेरिएबल में नहीं है। हाँ यस। एंड सी क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि क्या वो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है या नहीं। तो ये सब आपके पॉलिनोमियल हैं, बट दे आर नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? वो 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। वो पॉलिनोमियल है बट पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? क्योंकि ये 2 वेरिएबल में हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चंस 5, 7th and 8, they are not polynomial in 1 variable. 5, 7th and 8, but polynomial हैं, they are polynomial, but they are not polynomial in 1 variable. They are polynomial in 3 variable, 2 variables, right? Polynomial in 1 variable. चलो नेक्स्ट, 8 के लिए मुझे कौन बताएगा? 8 के लिए बोलो पीयूष। Sir, it is a polynomial. Yes, polynomial. What should be its degree? Sir, 3. Yes, 3, sir. 3. सोचो एक बार, सोचो। Can anyone want to try? Yes, Shivansh. Sir, it should be 4 because 4. 3 plus 1. Yes. देखो पीयूष, इसकी पावर हो जाएगी 2 + 1 3, इसकी पावर हो जाएगी 2, इसकी पावर हो जाएगी 3 + 1 4. So degree should be 4. Is this clear, everyone? Right? You can tell me yes if you agree. Right? Now, चलो. So I am giving you 5 minutes. Note down this quickly. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन में डाउट है तो एक क्वेश्चन लिखो, 2 में डाउट है, 2 सारा का सारा डाउट है तो फटाफट नोट डाउन कर दो. ओके, डू इट क्विक. ओके, लेट अस सी 7th क्वेश्चन ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज. अब ये 7th क्वेश्चन में भी आपको सभी क्वेश्चंस में डाउट है स्टूडेंट्स? सर ये इन क्लास एक्सरसाइज नहीं है, ये होमवर्क अच्छा, ये एक्सरसाइज। होमवर्क का है. मैं वही सोचू, दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हो गए, मतलब 2 टाइप के. अच्छा, ये होमवर्क का मैंने उठा लिया, माय मिस्टेक. ओके, okay, just a minute. Now, so this is your homework question 7. Let me take in class exercise question number 7. Write down a quadratic monomial and a linear binomial. एक quadratic monomial हमें लिखना है, linear binomial लिखना है. तो अब इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं.
आप अपने तरीके से अलग अलग स्टूडेंट इसको अलग अलग आंसर दे सकते हैं, अलग अलग आंसर आप बना सकते हो, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ एक क्वाड्रेटिक मोनोमियल का मुझे एग्जांपल चाहिए, बोलो श्रेया एक क्वाड्रेटिक मोनोमियल बोलो। 2x स्क्वायर। यस, क्वाड्रेटिक मोनोमियल। अब जैसे श्रेया ने बोला 2x², अब मान लो वही सेम क्वेश्चन अगर मैं किसी और को पूछ रहा हूँ, जैलिन आप बोलो क्वाड्रेटिक मोनोमियल का एग्जांपल। बाकी सब लग रहा है अपना वीडियो ऑफ करके सो गए। हाँ यस जैलिन, y to the power 2. y to the power 2, right, that's it. Yes, sir. Yes, right, so your coefficient is 1. On the other hand, जैसे रोहित बोल रहा है 3x², right, मोहिल बोल रहा है 3x², सेम रोहित बोल रहा है m², समर्थ बोल रहा है 8x²। तो इस तरीके से आप अलग अलग कोएफिशिएंट ले सकते हो। मोनोमियल मींस इट शुड कंटेन ओनली वन टर्म। नाउ एंड अ लीनियर बाइनोमियल, चलो लीनियर बाइनोमियल हमें बस एक ही एग्जांपल बोला है, राइट, अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। चलो लीनियर बाइनोमियल, ओके, आदर्श इज टेलिंग x into y। अब x into y वो एक ही टर्म हो जाएगी आदर्श, दिस विल बी योर मोनोमियल आदर्श। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप क्वाड्रेटिक मोनोमियल का एग्जांपल दे रहे हो x into y आदर्श, राइट। सो यस, जैसे यहाँ पे रोहन बता रहा है x + 9y, यस राघवी, 2x + 3y, यस वरुण, 6x + 9 is also fine, right, that also we can do, 6x + 9, yes Samar, 2x + 5. Now see students, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आदर्श ने एग्जांपल दिया x into y, that is also a quadratic monomial, but the thing is यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है एक वेरिएबल में आपको लेना है कि दो वेरिएबल में लेना है। जब भी वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ट्राई टू टेक इन वन वेरिएबल। इज दिस क्लियर, राइट? अब जैसे श्रेया आपने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया x + 6x लीनियर बाइनोमियल का, बट सिंस ये लाइक टर्म से इनका एडिशन हो जाएगा तो वो 7x हो जाएगा, तो वो मोनोमियल ही हो जाएगी। क्लियर श्रेया, राइट? वो आपका फिर मोनोमियल हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? सो हम यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स देंगे पर्टिकुलरली? एक वेरिएबल वाले एग्जांपल लेंगे तो 2x², y², 3x², राइट, एंड एक वेरिएबल वाले, ये वाले इनफ है। तो अभी के लिए मान लो मैं इसको कंसीडर करता हूँ 8x², यहाँ पे 6x + 9, इसके बेसिस पे हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। दोनों में सेम वेरिएबल लेना है, अलग अलग भी ले सकते हो, बट बेटर हम जनरली एक वेरिएबल लेके चलते हैं x, तो फिर वही लेके चलो, ठीक है ना। Now first question they are asking, what is the degree of polynomial obtained on multiplying the two polynomials we have written? So let us multiply. So now 8x² into 6x + 9, it will be 8 6 are 48, x² into x³ 8 9 are 72, x²। Correct है everyone? Please give me some response. अब बोलो इसकी डिग्री क्या है? What is its degree? अमृत, इसकी डिग्री कौन सी है? अमृत है वहां पे? नहीं है। सो डिग्री इज 3, राइट? नाउ वुड द रिजल्ट बी सेम इफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद अ लीनियर बाइनोमियल? चलो करते हैं। तो लीनियर बाइनोमियल को 6x + 9 ही रहने दो। व्हाट यू विल टेक एज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मुझे एक एग्जांपल चाहिए। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, हु विल गिव मी दिस एग्जांपल? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, रेज योर हैंड। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। तनिष्का बोलो, अपूर्वा, अश्विनी, वर्षा बीजी बोलो, वर्षा बीजी। Sir, x² + x + 1. ओके, x² + x + 1. 1, राइट? अब यहाँ पे यस, बट समर्थ अलग अलग वेरिएबल मत लो, हम एक ही वेरिएबल लेंगे, राइट? x ही लेंगे। श्रीषा इज टेलिंग x into y। श्रीषा पहले ही मैंने वार्निंग दे दी, दो वेरिएबल मत लो श्रीषा। Sir, no, sir. I'm asking that how in quadratic monomial xy will come. ओके, अच्छा, तो ऐसे। अब मुझे ये बताओ श्रीषा, ये xy एक टर्म है कि दो टर्म है? Sir, one. वन टर्म, मतलब मोनोमियल है। अब उसकी अगर हमें पावर देखनी है तो पावर क्या होगी? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो टर्म की पावर हो जाएगी 1 + 1 2 और नॉट। हाँ या ना? Yes, sir. पता चला श्रीषा? नाइस, राइट? Okay, sir. Okay, great, great. चलो नेक्स्ट। सो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। सो अगर मैं x² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इट विल बी x² into 6x 6x³ plus
9x square, again plus 6x square plus 9x, फिर 1 को करोगे तो 6x plus 9, 6x plus 9। मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। अपूर्वा y क्यूब, आई थिंक आप लिख रहे हो y क्यूब प्लस y प्लस 3, बट वो क्यूबिक हो जाएगा ना अपूर्वा, राइट? वो क्यूबिक हो जाएगा। हो सके तो एक ही वेरिएबल में लो, एंड हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखना है। इज दिस क्लियर अपूर्वा? Okay, sir. हाँ, so 6x क्यूब प्लस 9 प्लस 6 15x स्क्वायर, 9 प्लस 6 15x प्लस 9। चलो अब मुझे ये बताओ, आपको क्या बोला है? वुड द रिजल्ट बी सेम इफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद लीनियर बाइनोमियल? तो यहाँ पे डिग्री क्या आई है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिग्री हियर? बोलो, 3 or not? Please give me some response. 3. So yes, Yes, sir. result is same. Okay, result आपका सेम आया है। पहले भी डिग्री 3 थी, अभी भी डिग्री 3 है। So this is your answer of first question. This is your answer of second question. After that also they are asking something. Hence, what would be the degree of polynomial obtained on multiplying two polynomials of degree 4 and 13? अब समझो, अब यहाँ पे एक moral of the story समझो, moral of the story समझो। अगर आप कोई सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेदर वो मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इसको आपने लीनियर से मल्टीप्लाई किया जिसकी डिग्री 1 थी, तो फाइनल आंसर की डिग्री कितनी आई? फाइनल आंसर की डिग्री कितनी आई? 3 और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। फाइनल आंसर की डिग्री कितनी आई? 3। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 1 एंड 3? राइट, कैन आई से दैट हियर 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3? यस और नो? राइट, यस। सो सिमिलरली वर्षा पाटिल, जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट आंसर पूछ रहे हैं कि अगर हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी डिग्री है 4 and 13, तो फाइनल रिजल्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी? अगर मैं ऐसी एक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसकी डिग्री है 4, राइट, दूसरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 13, तो फाइनल आंसर जो आएगा पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी होगी? 4 + 13. यस वर्षा? 4 + 13, sir. Yes, 4 + 13 17. So hence degree of resultant polynomial will be 4 + 13 is equal to 17. ओके, नोट डाउन कर दो क्विकली स्टूडेंट्स, मस्त वाला क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट अस सी योर फर्दर क्वेश्चंस। अब इन क्लास एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। होमवर्क में आपको डाउट है क्वेश्चन 1, 5 का फर्स्ट वन, 6 and 9। ओके, ये वाले क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। Now, homework question number 1. Write the standard form of cubic polynomial with real coefficients. अब समझो यहाँ पे, आपको याद है जब इन क्लास एक्सरसाइज हम क्वेश्चन कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन आपका था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ या ना? चेक। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें ax + b था, ax था, तो हमने फाइनली ax + b को फाइनल किया था, याद है तनिष्का? राइट। नाउ similarly, now they are asking you to write standard form of cubic polynomial, right? अब cubic polynomial का standard form में लिखना है with real coefficients, समझना। So can I write cubic polynomial as ax³ plus bx² plus cx plus d, where a, b, c, d are real coefficients, right? Real coefficients means real numbers. That's it. Real numbers लिख रहे हो तो भी चलेगा क्योंकि polynomial में वो already coefficients है। Is this clear everyone? You can tell me yes, right? जो standard polynomial था, see linear वाला standard कौन सा था? ax plus b. It is your standard linear polynomial. Please give me some response. हाँ या ना? जल्दी जल्दी जल्दी, come on. उसी तरीके से अगर quadratic आपको लिखना है, हाँ, तो standard quadratic polynomial क्या होगा?
ax square plus bx plus c, isn't it is your standard quadratic polynomial? Isn't it your standard quadratic polynomial? Yes or no, everyone? Please give me some response. पता चल रहा है, मैं उसी polynomial को बस expand कर रहा हूँ, and cubic के लिए मैं cube से लिखूंगा. Easy peasy lemon squeezy, everyone. आसान है, right? Now Samarth is asking, sir, can ax cube plus b be standard polynomial? नहीं Samarth, क्यों? क्योंकि जब आप ax cube plus b लिख रहे हो, आप उसे ही अगर स्टैंडर्ड बोल दोगे तो दैट मीन्स क्यूबिक में आपका एक्स स्क्वायर और सी एक्स आएगा ही नहीं. बट अगर इसी में मैं अगर मान लो b की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, c की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और d इक्वल टू b ले रहा हूँ, राइट? तो दिस विल बी योर स्पेशल केस. ये आपके इसी का स्पेशल केस हो जाएगा. जैसे ऊपर वाले केस में हम b 0 ले रहे थे तो ax उसका स्पेशल केस आ रहा था, याद है? हाँ या ना, राइट? अब राघवी जो आप लिख रही हो, राघवी आपने लिखा है एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो सबसे पहले तो ये वाई क्यूब नहीं आएगा, राइट? अगर एक्स क्यूब लिख रहे हो देन फाइन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स स्पेशल केस, जिसमें आपने a लिया है 1, b लिया है 1, c लिया है 2, d लिया है 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? स्टैंडर्ड मतलब ऐसे टर्म लिखने आपको कि जो सारे वैल्यूज को कवर कर दे. इज दिस क्लियर everyone? Quickly tell me yes if it is clear, quickly, right? Yes, sir. Give me some response. Yes, इतने sir. ठंडे क्यों हो गए हो? हाँ, come on, do it quick. ठीक है, sure. Now we will see question 5 first part now. हाँ, रोहन exactly माइनस भी लिख सकते हैं, no issue at all, right? अब जब b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो अपने आप माइनस आ जाएगा. सपोज b इक्वल टू -2 में लिख रहा हूँ, राइट? तो ax क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा. तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्लस लेते हैं क्योंकि ए बी सी आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके ना, let us see question 5 first one. Give an example of trinomial of degree 1, monomial of degree 3. तो पहले ट्राइनोमियल लिखते हैं. चलो, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 मुझे कौन एग्जांपल देगा? बोलो तनिष्का, थोड़ा ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं. Yes. Sushant is telling x plus y plus z. Yes. Same Shivansh is telling. Same Rohan is telling 5x plus 4 plus 9y. Yes, that is also correct. हाँ, समर्थ x into y हो जाएगा उसमें, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा, राइट? आकाश मोहिल a plus b plus c बोल रहे हैं, बट आकाश मोहिल a plus b plus c, उसमें a b और c जनरली हम कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल के लिए x y z यूज करते हैं, ठीक है? एंड प्रतीका इज टेलिंग x plus x plus x, बट प्रतीका अगर x plus x plus x कर रहे हैं तो वो 3x हो जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? सो आप समझो, ये शिवांश उसके ऊपर भी आ रहा हूं. तो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज पॉसिबल व्हेन यू आर टेकिंग पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल. हाँ या ना? राइट? व्हेन यू आर टेकिंग पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, then and then only trinomial of degree 1 is possible. मोहिल DEF भी नहीं चलेगा. स्टूडेंट्स अब क्यों नहीं समझ रहे हो? जब मैं A B C बोल रहा हूँ या DEF बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कोएफिशिएंट्स के लिए यूज होती हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज होता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो वेरिएबल्स हैं उसको XYZ से ही डिनोट करो, ठीक है? एंड अगर और ज्यादा वेरिएबल चाहिए तो रिवर्स में आओ, WXYZ. ओके, लाइक दैट. A B C D E F ये सारे आपके कांस्टेंट हो जाएंगे. इजी एवरीवन? क्लियर नाउ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो अब इधर ध्यान दो. अब चैट बॉक्स को थोड़ा शांति दो, अभी लिखना बंद करो, अब इधर ध्यान दो. ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 तभी पॉसिबल है जब आप मोर देन वन वेरिएबल में ले रहे हो. अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूं और आपको ऐसा बोला जाए एक वेरिएबल में लिखना है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 विथ वन वेरिएबल ओनली. चलो, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हो. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में अगर डिग्री 1 है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? डिग्री 1 इज नथिंग बट योर लीनियर पॉलिनोमियल.
लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म? इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax plus b. yes or yes, very good वर्षा बीजी. तो ax plus b उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. दैट मींस आप आइदर 2x plus 3 लिख सकते हो, 4x plus 9 लिख सकते हो, राइट? ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 10x minus 6 लिख सकते हो. बट ये सारे के सारे क्या होंगे? बाइनोमियल और नॉट? ऑल दिस विल बी बाइनोमियल्स और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? तो सिंगल वेरिएबल में क्या सिंगल वेरिएबल में ट्राइनोमियल पॉसिबल है? सिंगल वेरिएबल में ऐसी लीनियर पॉलिनोमियल जो ट्राइनोमियल हो, क्या वो पॉसिबल है? या सिंगल वेरिएबल में ऐसी पॉलिनोमियल कि जिसकी डिग्री 1 हो और 3 टर्म्स हो, ऐसा पॉसिबल है? राइट. सो द गिवन condition or given example is possible when we are taking polynomial in more than one variable, right? For polynomial in one variable, trinomial of degree 1 is not possible. Trinomial of degree 1 is not possible in case of polynomial in one variable. Is this clear everyone? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल लेना है कि पॉलिनोमियल इन मोर देन या सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेना है, इसीलिए हमने दोनों केस लिख दिए, राइट? अगर पॉलिनोमियल ग्रेटर देन वन वेरिएबल में तो क्या होगा, एंड अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल में है तो क्या होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? टेल मी यस क्विकली इफ इट इज क्लियर. क्विकली स्टूडेंट्स. तनिष्का, सांकेती, हाँ, आज हो क्या गया है सबको? आज इतना कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? डू इट क्विक, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, राइट? फिर इसके बाद बचा आपका क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 9. तो जिसमें डाउट है वही कर रहे हैं, ठीक है? सो इसके से फर्स्ट में डाउट था. सेकंड वन इज वेरी इजी. नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इज रूट 11 अ पॉलिनोमियल? क्या रूट 11 पॉलिनोमियल है? लेट अस सी. चल, अब मुझे ये बताओ, पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? क्या मैं रूट 11 को ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 11 इंटू एक्स टू द पावर 0? क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकती है या नहीं? हाँ या ना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको याद है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, 2x 3x, राइट, सॉरी 2 3, जिसे हम लिखते थे 2x टू द पावर 0 3x टू द पावर 0. हमने कांस्टेंट पावर देखी थी, राइट? हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखी थी, हमने जीरो पॉलिनोमियल देखी थी. यस, मुहिल इज आस्किंग सर पावर शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन. यस मुहिल, बट वो जो पावर थी वो x की पावर थी मुहिल. x की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट की पावर है. कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो चलेगा, कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, कोई लेना देना नहीं है. कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो चलेगा, राइट? जस्ट वेरिएबल की पावर आपकी 0 होनी चाहिए. यस, सो इज रूट 11 पॉलिनोमियल? यस, रूट 11 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. चलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? यस अमृत, वेरी गुड. So degree of constant polynomial is 0. And how many number of terms here we are having? 1. 1. Right? It is nothing but your monomial. Is this clear everyone? Right? Easy? Easy peasy lemon squeezy? Yes. You can tell me yes if you agree. Right? चलो, क्वेश्चन 6 यहाँ पे क्लियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 6 के बाद अब आपको क्वेश्चन 9 में डाउट है. चलो, अब क्वेश्चन 9 को डिस्कस करते हैं, उसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश किया जाए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन. Two polynomials in variable ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये ax क्यूब है, प्लस इन वेरिएबल x पर्टिकुलरली प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s are added, multiplied, subtracted. What is the maximum possible degree of resultant polynomial each?
हर एक केस में मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या होगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो 1 by 1 करते हैं। यस ओके राघवी, क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट, ठीक है, इसके बाद वो एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट एज वेल, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सारे केसेस हम 1 by 1 अप्लाई करेंगे, एडेड, मल्टीप्लाइड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो लेट अस यूज अवर फर्स्ट अप्रोच, लेट अस ऐड। So ax cube plus px cube वो आपका क्या हो जाएगा, will it be a plus px cube or not? हाँ या ना, right? bx square plus qx square, isn't it will be b plus qx square? Students, are you getting my point? हाँ या ना? Pratika, Sanketi, cx plus rx, isn't it will be c plus rx? And यहाँ पे आपका हो जाएगा d plus s. Easy, you can tell me yes? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी। चलो अब इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है? 3. मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री, अब मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री 3 तभी हो सकती है जब x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो, राइट? इट इज पॉसिबल व्हेन a plus p is not equal to 0। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, राइट? बिकॉज a plus p अगर 0 हो गया तो x क्यूब निकल जाएगा ना। बोलो बोलो हाँ या ना एवरीवन, समझ रहे हो कि नहीं? राइट, कम ऑन गिव मी सम रिस्पांस। काउट खेलना है कि नहीं खेलना है? काउट खेलना है तो रिस्पांस चाहिए स्टूडेंट्स, क्विकली। Yes, sir. हाँ, नाउ ax cube plus bx square plus cx plus d into px cube plus qx square plus rx plus s। चलो 1 by 1 सबको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ax क्यूब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? ओके, इवन ये मल्टीप्लीकेशन भी आप पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है, नहीं तो थोड़ा आप सोच सकते हो, समझना। अगर आप यहाँ पे पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जाओगे तो समझो कितने टर्म्स मिलेंगे, 4 टर्म्स इंटू 4 टर्म्स, आपको 16 टर्म्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? फिर उसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर जो उसमें लाइक टर्म्स होंगे वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? सिंस वी वांट डिग्री, वी वांट मैक्सिमम पावर, राइट? अब मुझे बताओ 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाली टर्म की पावर 6 आएगी, 3 वाली पावर के 2 वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगी, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? जल्दी जल्दी। फिर 3 + 1 4, फिर 3 ओनली, हाँ या ना एवरीवन? नहीं पता चल रहा है तो एक बार करते हैं। a इंटू पी एक्स टू द पावर 6 प्लस a इंटू क्यू एक्स टू द पावर 5 प्लस a इंटू r एक्स टू द पावर 4 a इंटू s एक्स क्यूब, राइट? चलो b को करते हैं यहाँ पे, b इंटू पी और p इंटू b एक्स टू द पावर 5, p इंटू b एक्स टू द पावर 5 प्लस b इंटू क्यू एक्स टू द पावर 4 प्लस b इंटू r एक्स क्यूब प्लस b इंटू एस एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलो अब cx को मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स के साथ, फिर dx को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी dx स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स के साथ। चलो अब cx को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब cx आप सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, c इंटू पी इट विल बी एक्स टू द पावर 4, c इंटू पी एक्स टू द पावर 4। ये बस समझा रहा हूँ, पूरा करने की जरूरत नहीं है। c इंटू क्यू एक्स क्यूब प्लस c इंटू आर एक्स स्क्वायर, राइट? एंड फाइनली c इंटू एस और s इंटू c लिख सकते हो, c इंटू एस एक्स। जब d को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी p इंटू डी एक्स क्यूब प्लस q इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू आर एक्स प्लस d इंटू एस। Is this clear everyone? You can tell me yes if you agree. तनिष्का, सांकेती, मोहेल, अमृत, राघवी, प्रतिका, क्लियर है? Yes, sir. आयन ना, आयन, राइट? आयन आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। दीपा, प्रांजन, ओके, वर्षा, बोथ वर्षा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? ये मैं आपको समझा रहा था कि टोटल 16 टर्म्स मिलेंगी, 4 + 4 + 4 + 4, बट बेटर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ या ना? राइट, जस्ट आप क्यूब को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो हियर maximum degree will be 0, maximum possible degree will be 6, and what should be the condition for that? Degree should be equal to 6 if a and p is not equal to 0। a into p 0 कब होगा? either a 0 हो या p 0 हो,
राइट। तो अगर a 0 होगा या p 0 होगा तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा, बट सिंस वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं तो वो आपका 0 होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट। चलो अब सब्ट्रैक्टेड वाला तो हमारा काम आसान हो जाएगा। Now, so ax cube plus bx square plus cx plus d px cube plus qx square plus rx plus s। चलो समझो, अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? Isn't it will be a minus px cube? Isn't it will be b minus qx square? Isn't it will be c minus rx, right? And this will be d minus s. Hi Anna, everyone, quickly, please give me some response. So here, maximum possible degree will be equal to 3, provided that if a minus b is not equal to 0. तो यहाँ पे आपका a minus b 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, राइट। एंड यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो 0 होगा ही नहीं। चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। तो क्वेश्चन 7 वाला बस आपका बचा है, वो देख लेते हैं। Okay, so let us see now your question 7, second part of homework, your last doubt of homework 2.1. Which of the following are polynomial in one variable? Give reason for your answer. Also write the degree of each polynomial. It is same as in class exercise question number 5. अब second में अगर आप देख रहे हो, so it is x to the power 4, x square, 3x, 18, right? So is it polynomial in one variable? Yes. सभी जगह पे एक ही वेरिएबल है। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो एवरीवन, राइट। नाउ डिग्री, अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। इजी, राइट। इजी राघवी, यॉर्निंग इज नॉट अलाउड रोहित, राइट। यॉर्निंग क्यों आ रहा है? नींद आ रही है, मजा नहीं आ रहा क्लास में? चलो हो गया, गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। Yes. राघवी, क्लियर डाउट? Yes, sir. So here we are ending your exercise 2.1.